points along the curve. I mean, every point shows the optimal level of output. I mean, the resources are efficiently utilized. The point is generally called efficient and attainable. The point of the production possibilities curve is called efficient and attainable. The point that is outside of the curve is unattainable, and the point that is inside of the curve is attainable. And here we talk about the slope of production possibility curve, marginal rate of transformation. Rate of product transformation is the slope of production possibility curve. Also, the slope of production possibility curve is relative of the marginal cost of two commodities. The ratio between the marginal cost of two commodities. This is another way to define of the production possibilities. We generally talk about OPG. Yeah, this is what the production possibility curve. This is the point that is attainable. This is the point that is unattainable. Yes, sir. When this unattainable is attainable. When we have more resources. When the production possibilities curve shifts upward. This is the production possibility curve 1 and this is for the production possibility curve 2. When the production possibilities curve upward shifts in production possibility curve means an increase in economic resources. आपके वसाइल बढ़ गए थे. पहले आपके पास 20 टन स्टील था और 10 कार बना रहे थे. अब आपके पास 30 टन स्टील हो गया है और 15 कार बना रहे हैं. When the resources increase, so therefore that could be explained with the help of an upward shift in production possibilities curve. ये शो करता है कि increase in economies resources. आप कह सकते हैं this is what we call economic growth. Economic growth. आपके resources बढ़ गए हैं, so therefore that will shift upward parallel and upward shifts in production possibility curve. And when it shifts inward, a decrease in vice versa. Resources ज़ाया हो गए हैं, resources destroy हो गए हैं, resources कम हो गए हैं. Anything, I mean the number of reasons, maybe corruption बहुत हो गया है. मुल्क तरक्की की बजाय ज़वाल पजीर हो रहा है. फैक्ट्री में चोरी हो रही है. फैक्ट्री बढ़ने के बजाय फैक्ट्री घाटे में जा रही है. फैक्ट्री आग लग गई है तो रिसोर्सेज ज़ाया हो गए हैं. अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ, we talk about the Pakistan. This is the Pakistan. The major sector of the Pakistan economy is agriculture sector. I assume industrial sector, and this the production possibilities curve of Pakistan. इतना agricultural output produce कर रहे हैं, इतना industrial output produce कर रहे हैं. For an example, ऐसा होता है. पाकिस्तान में तो खैर मैं यूँ कहूँगा कि हमारा हर रोज production possibility curve जो है, हर रोज पाकिस्तान की production possibility curve, हर दूसरे दिन, हर आने वाले दिन हमारा production inversion हो रहा है. Due to corruption, due to mismanagement. Economics teaches us the efficient management, organization of the resources, and we are not organizing them. We don't have the optimist people, you know. We are lacking of that optimist people. Is it? We don't have. So therefore, Pakistan का मामला है, तो critical है कि ये हमारा agriculture sector है, ये हमारा industrial sector है, ये हमारा PPP1 है. पाकिस्तान में एग्री की मैक्सिमम आउटपुट इतनी है, जलजला आ गया, फ्लड आ गया, इतनी एग्रीकल्चर आउटपुट डिस्ट्रॉय हो गए. नाउ वी हैव द न्यू प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर आउटपुट ज़ाया हो गए ना, जलजला आ गया या जो सैलाब आ गया. अजीब सी बात है पाकिस्तान में. हम लोग पता क्या प्रॉब्लम पता कहाँ से? We are facing number of problems. We are responsible. आप चाहे तो सही, पता चला कि जनाब नहर के अंदर घर बना के रहे. वो मौसम वो नहरें सूख जाती हैं और उसके अंदर घर बना के रहने लगते हैं. वहाँ पे मवेशी पाल लेते हैं, जानवर पाल लेते हैं. कि अब जाहिर सी बात है जब सैलाब का मौसम आता है वो तो भाई सैलाब का रास्ता है. आपने तो सैलाब के रास्ते में अपने घर लेके चला.
like there is चलो भाई हमारे साथ चलो लेके चला जाता है भाई कहते हैं मवेशी बह गई वो माय गॉड क्यों नहीं बहेंगे आप रास्ते में तो घर रुके हुए थे उसके रास्ते रोड पे जाके ले लेते थे गाड़ियों में अब बोला एक्सीडेंट नहीं होगा ट्रैफिक नहीं रुकेगा ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यों नहीं होगी भाई ट्रैफिक के हम जाके बैठे हैं तो गाड़ी का डर है ना एक्सीडेंट का डर है ना गाड़ी ट्रैफिक रुकी आप रोड पे लेटोगे So there was a problem. I mean, this was the problem. I'm trying to say, अब मजे की बात मुझे मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं तो दूसरे अंदाज से चीजों को देखता हूँ। पता चला कि 2 आदमी का सैलाब और 200 जानवर को, लो जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उसको लेंगे, इनको लेंगे तो सही, इनको लेंगे तो सोचिए ना, this is our productive resources. ये हमारा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, ये प्रोडक्टिव थोड़ी होगा, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है क्या? सिर्फ इन नॉन प्रोडक्टिव नॉन रैशनल और नॉनसेंस लोगों की वजह से नॉनसेंस का मतलब काली नहीं है बड़े ने सब काली बोल रहे थे साहब को मैंने कही लिसन तो उन्हें मुझे तुम बोला मैंने कहा समझ गया अगर ना आप सुने मेरी बात तुम बोला मुझे तुमने मैंने कहा तुम नहीं बोला आप लिसन में बोल देता हूँ You know, Ratan Shah, sir, उनकी भी क्या रहती है नहीं है प्रोसेस नहीं है ना सर नहर में बैठ जाए कोई सोचते नहीं गटर में बैठ जाए कोई एटलीस्ट आप अब तुम जाओ भात खाना शुरू कर दो सर ये खा लेगा सर अभी ज़्यादा था कोई जो चाहता कर लेता लेकिन आगे पेटे घूम रहे यार इस नबी की उम्मत में से हो जरा सोचो तो सही यार ये बातें नहीं बोला करो यार मुझे बिल्कुल आई डोंट एग्री यार आई डोंट सब कर रहे तो मैंने किया क्यों किया भाई सब कर रहे तो सब गटर में गिरे तो भी किसके पहुंचे सब कर रहे थे उनको पता तो होगा ना ऐसे घर बनाए तो अगर कोई मतलब समझदार बंदा होगा तो वो तो ही बनाएगा बहुत समझदार है कभी पानी पिलाने का कभी घोड़ा आगे दौड़ाने इस तरह से जमीन के ऊपर लड़ते कत्ल कर देते तुम्हें पता ही नहीं है यार तुम्हें तो पता ही नहीं है सब पता है तो तुम उनके इलाके से गुजरे बहुत से देखेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे आपको पता ही नहीं है आप जाए तो सही उसके पास बैठो तो सही वाले होते हैं ये कि आप मैं I have been taking number of interview conducted number of interviews for director आपको जवाब नहीं देते आपको जवाब नहीं देता आप इनके इलाके में खुशियों को दिखाते संवाद पैदा नहीं होता होशियार होते हैं ये तो हर उम्मत के लिए कितना है मेरी उम्मत का कितना मान है नबी ने कह दिया हमेशा दर और जमीन पे लड़ाई रही है और उन लोग ये जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया अगर दुनिया को सब कुछ समझ लिया दुनिया तो कुछ नहीं दुनिया की हकीकत जो है ना असल तौर पर अब देखें आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है क्या हीरा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है मैं कहता हूँ हीरा तुझे मैं चलिए दुनिया खूबसूरत बेहतरीन चमकदार एक बोतल मक्खी गिफ्ट करता हूँ You would like क्या हो गया आपको मैंने कहा बेहतरीन चमकते हुए रंग बिरंगी मक्खियाँ गिफ्ट करता हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस पे क्या हो गया कैसी बातें कर 1400 साल पहले बता दिया कि दुनिया की पर टूटे अगर मच्छर अच्छा से भी बनता है पर टूटे हुए लंगड़े मच्छर से भी बनता है तुम्हें बहुत अच्छा है मक्खियाँ दे रहा हूँ ज्यादा चाहिए सर जो माहौल नहीं वो मैं बात नहीं करना चाहता ये बात एक शायर है उस पे बड़ा फतवा था मेरे चंद पसंदीदा मेरी जिंदगी में चंद पसंदीदा अशार में से एक है वो बहुत सिंपल है लेकिन इतना इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कहते हैं कि इस्लाम की गर तुझको फिजा रात ना आए एवरीबॉडी इस्लाम की गर तुझको फिजा रात ना आए प्यारे वतन तुझको कोई आग लगा ठीक
سر اس کے اوپر بڑے مسئلے مسائل ہوئے تھے. آپ جب آپ بچے پڑھ کر آئے ٹیوشن بچہ بولنے کے لیے تھوڑی پاکستان چاہیے. یہ تھوڑی تھا کہ جناب سے پاسبل. آپ دیکھیں عمل سے ہوتا ہے. ہم 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگا دیتے ہیں, ٹریفک جام کر دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ہمارے عمل کتنے خطرناک ہیں. آپ بولیں گے غلط بول رہا ہو تو آپ یورپ پہ جائیں وہ بھی کرسمس مناتے ہیں. تبھی تو 12 ربیع الاول ہے تو ہمارا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہے. روڈ بند کر دو, بلاک کر دو, جلوس نکالو, ہرے ہرے جھنڈے پورے گھر پہ لگا دو. زبان پہ آدمیت کی طرح میں عظمت آدم نہیں ہے. اقبال بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے, ایک حزب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے, ہر میں کعبہ بھی ہے, اللہ بھی ہے, قرآن بھی ہے, کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ہے. مومن اگر ایک ہوتے ہیں گھر سے پورا مسلمان تو نہیں مگر شب برات شب برات آ گیا تو دیر وقت بہت ہے. کسی کی جنازانی ہو جائے, کسی کو بات برا لگ جائے تو میں دیکھیں میں جنرلائز فارم میں بات کر رہا ہوں. یہ نہیں آپ بولے کہ آپ 12 ربیع الاول تو میری زندگی میرے ماں باپ کو میری زندگی میں ایک اس میں حسنہ پر عمل کر لوں, لیکن اس میں حسنہ بھی نبی کی زندگی میں ایک تکلیف کسی کو بچایا. آپ اس سنت کو طاقت کر رہے تھے عمل سے کرتے ہیں, عمل سے کرتے کسی غریب کو گھر سے برابر میں نیند بھی گولی کھا کے بیمار آدمی کھڑا. یہ تو نہیں ہے نا. سب ملیدہ بنائیں گے, ملیدہ بولتا ہے بنائیں گے, آپ حلیم پکائیں گے, آپ گھنٹے لگائیں گے, آپ چڑیا کھوئیں گے, آپ اور قربانی کا گائے کا کر کے فریزر میں بند کر دیں گے. بولے آپ یقین کیجیے میں اکانومسٹ ہوں, آپ سروے کر لیں, ایسے سروے کر لیں پورے 12 مہینے کا, پچھلے 5 سال کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیں الیکٹرانک مارکیٹ میں جا کے پورے 5 سال کا. میں تو کہتا ہوں پروو اٹ. ہم جو کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کو پروو کر رہے ہیں. تھیری کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹیسٹیفائڈ اسٹیٹمنٹ. ٹیسٹیفائڈ ہوتا ہے وہ. آپ جائیں میرے اسٹیٹمنٹ کو پروو کر دیں تھیری میں جائیں. آپ جائیں 5 سال کا ڈیٹا لیں الیکٹرانک مارکیٹ سے. ہر دیکھیے گا ڈیپ فریزر اس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ بقرعید کے سیزن کے آس پاس ہوتا ہے. سب سے زیادہ وہ لوگ کہتے ہیں سیل ہوتا ہے ڈیپ فریزر جو ہے نا بقرعید کے دن. بقرعید سے 15 دن 1 مہینہ پہلے شروع ہو جاتا ہے وہ. آپ بقرعید کے قریب 15 کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کے بعد پیچھے چلا جاتا ہے. آپ 5 سال کا ریٹ پیک پہ ہوتا ہے بقرعید سے 1 مہینہ پہلے ڈیپ فریزر اور فریز کا ڈیمانڈ. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو 1 لاکھ کا جنازہ دیتا ہے اس کو 15 دن میں. تو یہی ہے ولیدہ بنانا, گائے ذبح کر کے گوشت کھانا ساری, اور بڑی بڑی ڈھکارے لینا, یہی باربیکیوز کرنا. اب بولے غلط ہمارے مولوی حضرات کے گردن دیکھنے سے موٹے ہوتے ہیں. سر واقعی سر غفلت میں رکھا قرآن میں اللہ کو متقاصر ہوتا, غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی باتیں ختم ہو گئی. یار قرآن میں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. غفلت میں رکھا بہتات کی حص جو ہوتی ہے نا, حص حوث انسان کو پاگل کر دے, پتہ ہی نہیں ہے. جنون کی کیفیت جاتی ہے, قتل کر دیتے ہیں وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے. غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ایک دوسرے سے خواہش نے, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تم میرے ساتھ چلو میں دکھاتا ہوں. سر آپ economic resources efficiently utilized along the curve, inefficient under the curve. Curve will shift upward, economic growth. Curve shift downward, I will say inflation, negative growth, I would say. اور curve جو ہے x یا y axis سے بینڈ ہو سکتا ہے. لیکن آپ میں یہ نہیں کہتا ہوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں یہ پاکستان میں
زلزلہ آیا پاکستان میں چھوڑ دیجیے آپ کو اچھی طرح سے پچھلے دنوں کیا کتنے سال ہو گئے 4-5 سال ہو گئے آپ ہم سے باتیں کرتے ہیں نا تو ہم ذرا کہتے ہیں نا جب آپ کسی پر تبصرہ کیجیے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے دیکھیے آپ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس طرح سے گاڑیاں چلی تھیں اس طرح سے بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن پر آپ کے ریسورسز کو ڈسٹروائے کیا گیا اس طرح سے لوگوں کو مارا گیا تھا میں پرسنل ٹی وی میں ڈیبیٹ ہوا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ بتائیں کسے جو لڑکیاں گھر نہیں پہنچی تھیں کئی 100 لڑکیاں غائب ہو گئی جو آج تک نہیں ملی اسلامی جمہوریہ جہاں پہ نہ عزت نہ طور نہ کچھ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ بات کریں آپ بولے وہ ریشنل ہے ریشنل ایکشن ہے آپ کے راستے میں بیٹھ گئے عورتوں کو چوری کر لے غائب کر دیتے ہیں راستے سے اٹھا لے جاتے ہیں بینک کو پورا اے ٹی ایم مشین اکھاڑ کے لے گئے بولے غلط کیا پورا اے ٹی ایم مشین اکھاڑ کے لے گئے آپ سب چھوڑ دیں اتنے طاقتور لوگ ہیں یہ بتائیے یہ کون سا عقل نہیں ہے یار آپ بتائیں یہ کون سا عقل نہیں ہے پڑھا لکھا آدمی بہترین 0 میٹر بڑی والی کار میں بیٹھا ہوا ٹک ٹاک لگایا ہوا ریڈ لائٹ پہ جو نا گاڑی دوڑا دیتا ہے ٹریفک والے لوگ تو اس کو تھپڑ مارتے ہیں میں منسٹر کا بیٹھا ہوں اس کو سب پتا ہے اب بولے سینس نہیں So, like, actually, has well off people to say, yeah, they live in like my society, but they live in flats, right? So, नीचे खाना like लगा तो लेकर के सारे न्यूज़ में भी आया था. तो वो सारे घर वाले आकर और दुकान में जाकर जितने भी कपड़े थे चुराए, सही है? उस कपड़े चुराने के बाद जो बेकार कपड़े थे जो नहीं थे तो उसको आग लगाई. उसके बाद उसकी दुकानों को आग लगाई, उसकी गाड़ी को आग लगाई. मतलब they were born like for FIR or something. मतलब they lived in a society. So therefore अब आप इसी का बेहतरीन मिसाल है अभी रिसेंट पास्ट में जबरदस्त किस्म की सुनामी आई थी जापान एग्रीकल्चर सेक्टर तो है नहीं जापान जो भी थोड़ा सा है they have lost their agriculture production agriculture product they have lost their industrial product उसका बिल्कुल production possibility का बिल्कुल shift हुआ Japan you know they are you can comparative advantages in the production of car as far as the automobile industry is concerned you know no comparison as far as how Japan is concerned आप बताएं उसकी automobile industry पूरी तरह से तबाह हुई थी उसका research center आपका जो उसका रिसर्च सेंटर है स्पेशली टॉक अबाउट एटॉमिक रिसर्च सेंटर वो तबाह हो गया था जापान का प्राइम मिनिस्टर का क्या था इसने कहा अपने कॉन्ग्रेस में टाइम टू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड दे हैव कोऑपरेटेड एंड दे नाउ देयर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज गोइंग अपवर्ड nobody stole anything from the shop nobody stole anything from the shop बल्कि they have cooperated जिसको मसला था उसको हेल्प कर रहे थे ये वो कौमें हैं कौम से बनती है भाई मतलब ये ऐसे नहीं होता आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर तो आप रिस्पांसिबल हैं हमारा बात को अपने घर में सर जापान के मुल्क में सारे लोग कम लोग थे उनको लोगों में सारी वो छुट्टियां जो मुसलमानों में होनी चाहिए सारे लोग तो देयरफॉर आप लिफ्ट करते हैं अपने एफिशिएंसी को और डाउनवर्ड लेकर जाते हैं एफिशिएंसी को बराबर So you think about it. You just think about it. See what is happening. And कहते ना यार वो तरक्की कर रहे क्यों नहीं करे? Corporations पूरा 1 घंटा शोर मचाते रहे कोई पढ़ाई नहीं पूरा 1 घंटा खामोशी सुने पढ़ाई सर अब ये पूरी करप्शन इस चीज़ की अगर बात कर रहे हैं ना तो अगर यहाँ से अगर शुरू करें कि जो तालीमी इदारे हैं आज ये हमारे यूनिवर्सिटी इसके अंदर आया क्या यहाँ पे एक ऐसा कानून नहीं बनाया जाता हालांकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नारा लगाया जाता है यहाँ एक ऐसा कानून नहीं बनाया जाता और नमाज का एक टाइम रख के आप बाकी सब कर सकते हैं देखिए मेरी बात सुनिए आप उसके लिए आपको रोका नहीं कीजिए पहली बात सुनिए दूसरी बात अभी आप ये छोड़ते हैं करप्शन का लेवल ये है कि हम नमाज में भी करप्शन करते हैं 17 रकात हो जाए 9 रकात पढ़ के निकल लेते बोले गलत करो असल में 8 रकात कितने आप में से कितने लोग हैं असल में 8 रकात नमाज पढ़ते चार परसेंट असल में कितने वो आप
सर अब डिबेटेबल है वो तो एक्सक्यूज निकालेंगे, मुकद्दा है, गैर मुकद्दा है, वाजिब है, ये है, फर्ज है, सुन्नत है। में सर ये आप सल्लम के दौर में इसमें था, वो भी पढ़ते थे और वो भी छोड़ते थे। एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं बात कर रहा हूँ यार, देखिए सर नॉट ए एक्सक्यूज सर, ये एक्सक्यूज नहीं है। आर्ट तो है आपकी 17 में लोगों को सिखाया नहीं पढ़ते। मैं आपकी बात से बात कर रहा हूँ करप्शन ये भी करप्शन है, क्लास करप्शन ये भी है, घर वाले आपके घर वाले आपके घर वाले हमारे मिसाल के तौर पर कोई स्टील में जॉब कर रहा है, कोई किसी मस्ती में जॉब कर रहा है, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई या कोई रेलवे जॉब कर रहा है, घर में पीआईए का, रेलवे का, स्टील मिल का पैड, लेटर पैड, कलम, एनवेलप घर में मिला, घर में लाने दिया तुम्हें, वो ऑफिस के लिए हम उठते इतना सा पेजेस निकाला, 4 एनवेलप लिया, घर चले गए। बच्चे देखा कि वो जनाब अरे प्लीज क्या रेलवे की लेटर पैड पे बच्चे लेक्चर बना रहे हैं। ओ भाई बच्चों की लेक्चर बनाने के लिए थोड़ी मोटी है, करप्शन है, ये चोरी है, ये ऑफिस से निकलने लगे, पेन रखा, आ गए घर में बच्चे को दे दिया, ओ भाई चोरी करके लाया तुम पेन, ये चोरी है। सोचा आपने वो जो आप ऑफिस का एक एनवेलप घर में आपके बच्चे के पास है, वो चोरी है, चोरी करके लाए। आपको इजाजत परमिशन दिया अपने बॉस से कि मैं ये लेकर जा रहा हूँ? नहीं, क्या आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि आप लेकर जाएंगे अपने घर अपने बच्चों के लिए? हाँ जी ठीक है, ऑफिस आपके बच्चों के लिए तो प्रिंट हो रहा है। नहीं तो नहीं उनकी चोरी बोलते हो तो प्रॉब्लम है। अगर इसे आप करेंगे ना तो क्योंकि हम हमेशा अपनी ऐप छुपाते, प्रॉब्लम सारा ही मुझे 2 मिनट क्लास में लेट आना, 5 मिनट क्लास से पहले चला जाना, ये भी करप्शन। आप बोलिए ना तो नो आप we have talked about features का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, जिसमें 3 फीचर बताए जाते हैं। उसके बाद कल हमने अटेनेबल एंड अनअटेनेबल डिस्कस किया। तो मैं जब इतना डिटेल में जब मैं आपसे जितना भी मैंने डिस्कस किया है ना चीजों को शिफ्ट करके इन वर्ड या राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड बैंड करके प्रोडक्शन मैं केस स्टडी बनाता हूँ आप ग्राफिक रोल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपको इंटरप्रेट करना, इसलिए मैंने थोड़ा then we talked about employment and unemployment. देखिए एम्प्लॉयमेंट इसको फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट तो लिखा है मैंने, फुल एम्प्लॉयमेंट इसको फुल एम्प्लॉयमेंट हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Full employment means when all economy's resources are being used. The full employment means when all economy's resources are being used. When all economy's resources are being used. Economy's resources are being used. Full employment. And unemployment means when some of the economy's resources are not used. Unemployment when some of the economy's resources are not used. यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि जब इकोनॉमीज के सारे रिसोर्सेज आपने सही से इस्तेमाल किया, ठीक है ना? When all economy's resources are being used, when some of the economy's resources are not used. Unemployment. आप देखिएगा जरा प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। Commodity X, commodity Y. This is what the production possibilities curve. This is what the point A. Efficient and attainable. Efficient and attainable. I assume if you are the production is at point A, I say okay. Point A is efficient, attainable point. How much could X and Y could be produced? I assume at point A 9 of Y and I say for example 4 of X could be produced. I mean 9 series, B series, last row I'm talking you, yes, B series, okay, at point A, 9 of Y and 4 of X could be produced, and at point A, 9, 4X and 9Y is the efficient production, okay,
point A to B along the. Now we are at point B. I assume at point B along the production possibility. At point B, how much Y could be produced? I assume 6 of Y and I assume 5 of X. At point B, 5 of X or 6 of Y is the efficient production. We cannot produce A and B simultaneously. Whatever the resources you have, either combinations could be produced. जो वसाइल है, रिसोर्सेज हैं, उससे A बना सकते हैं या B बना सकते हैं. B का मतलब है 5x, या A का मतलब क्या है 4x 9x. इतना यानी कि A अगर है तो वो एफिशिएंट है, B है तो वो भी एफिशिएंट है. के बजाय instead of point A or point B, the production is at point C. That is under the production possibilities. मैं आपसे गुजारिश ये थी कि मैंने आपका क्विज बनाया है, क्विज का प्रिंट निकाल के इस्तेमाल किया हुआ कि तरह प्रिंट निकाला है, प्रिंट निकाल के टेबल पर रख के मैं भूल गया उसकी फोटोकॉपी से उसकी कॉपी बनाऊं. मसला ये है. कल रात को when you remind me ना, that time I prepared the quiz. बनाया, उसका प्रिंट निकाला. कल मैंने प्रिंट निकाला, उसका प्रिंट निकाल के मैंने अपने टेबल पे रखा. मैंने कहा यार मैं इसका फोटोशॉप से ना और वो ले लो, कॉपी बनवा लो. वो मेरे ध्यान से. अच्छा, आज ऐसा था कि हुआ ये कि मेरी सुबह 8:30 बजे क्लास थी. पहली क्लास नहीं होती तो आपकी क्लास में यकीनन मैं प्रिंट करवा के लेकर आया. ये मसला. अगर आप कहते हैं कोई मसला नहीं, ये 5 मिनट लगेगा, मैं जाऊंगा प्रिंट करवा के लेकर जो बेचारे तैयार होकर आए, तैयारी करके आए. मंडे सर, मंडे को सर मंडे शादी में सबसे पहले खुद हाथ डालते भी आई हुई पढ़ते हैं वो रात की चिकन पीसेस और human behavior. such thing as free lunches. Such thing as free lunches, you know. Now, अब और सुनिएगा please. Instead of point A, of point B, we are at point C. Neither at point A nor at point B, the production is empty. A is efficient. B is efficient here. A is efficient attainable. B is efficient, but C is inefficient but attainable. C जो है बता चुका हूँ ना मैं, under the curve inefficient होता है. अब point C पर inefficiency आ गई. अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं कितनी inefficiency है. पहले हम C को कंपेयर करेंगे A से तो पता चल जाएगा कितनी है, या आप C को कंपेयर करेंगे B से तो पता चल जाएगा अच्छा इसके मुकाबले में कितनी इनएफिशिएंसी, इसके मुकाबले में कितनी है. फॉर एन एग्जांपल कंपेयरिंग A विद C से देखना चाह रहे हैं. A तो एफिशिएंट है. अब देखेंगे C पर कितनी प्रोडक्शन हुई है. पहले तो ये देखें C के ऊपर प्रोडक्शन हुई है 6 of Y 4 of X. C पे प्रोडक्शन हुई है 4 of X and 6 of Y. अभी आप भूल जाए, अभी हम कंपेयर कर रहे हैं A को C से. अगर A पे होते if the production is point A, how much X could be produced 4X. Your production is at point C, how much X is produced 4X. अभी जो X पे जो resources लगाया था they are fully utilized. No problem with X. You can see. The resources been allocated to the production of X, those resources are fully employed. देखिए ना भाई, A पे कितना चाहिए था? 4. बना कितना है C पे भी? 4. And no problem with X, no problem with the resources of X. वो capital, वो resources जो X पे लगाया था, they are fully utilized because at point A that should produce 4. Even we are at point C that produce 4. No problem at all. So and how much Y could be produced? How much Y is produced? But the problem is
inefficiency by 3y. So there is a problem. There is a problem in X, sector X, that should produce 9 of y, that is produce 6 of y. Therefore, as far as the sector is concerned, the production of commodity y is concerned, inefficiency exists by 3y. And this 3y, देखा inefficiency exists करता है by 3y. This is what we call unemployment. Unemployment by audit. Unemployment. When some of the resources are not used. How much resources are not used? 3y. Got it? This is called unemployment by 3y. I mean, if we compare A with C, unemployment is anybody else? Now you compare. Now we are comparing. C with B. अब B को देखें. अगर आप B पर हैं तो X कितना बनना चाहिए? 5. Y कितना बनना चाहिए? 6. अब ये देखें कि Y 6 बनना चाहिए, तो Y 6 बना है. No problem with the Y. 5x बनना चाहिए, कितना x बना है? 4x. Inefficiency by 1x. This is it. C पर है तो 4 बनना, B पे होने तो 5 बनना था. Inefficiency. That is what we call unemployment by 1x. This is what basically the unemployment and full employment as far as the production possibility. Unemployment by 3y, but fully employed resources that are allocated for the production of commodities and the vice versa for the quantity as well. Any problem? So ये है unemployment, full employment, and of course talk about trade-off and free lunches. You know, trade-off. We talked about trade-off. Giving up something to get something else. Trade-off. Trade-off. There is inefficient point. Attainable and inefficient. We talked yesterday about it. And now, trade-offs and free lunches. You know, trade-off means giving up together. Free lunch, actually, in economics, in real sense, free lunch, you know, आप कहते हैं मुफ्त की चीज है, मुफ्ता. Have you heard the word मुफ्ता? Yes. ऐसा नाम सुना हो. चोरी, corruption, बेईमानी, मुफ्ता. This is what our tradition. जिसमें अखबार में, जिसे टीवी पे अमवाद की खबर नहीं आती, आप परेशान रहते हैं. क्या बात है? This is what our tradition. मतलब एक मुल्क आप लोग मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो मैं इस तरह की बात नहीं कर सकते. आप यकीन कीजिएगा, yesterday, I mean few days ago, happened to, I mean just I was sitting in my drawing room और मैं न्यूज़ था, तो मैं परेशान हो गया कि जनवरी 2011 से और 1 जनवरी 2011 से अभी 31 जनवरी 2012 यानी कि 13 महीने के दौरान कराची में मुख्तलिफ कचरा कुंडी जो जगह होती है वहाँ से 76 छोटे छोटे मौजूद बच्चों की लाशें मिली. ये किसी कौम के लिए अगर गैरदार कौम है, गलत कौम, हम वेरी सॉरी, ये काफी है. आपको मैं बताऊं, मस्जिद नबवी में, मस्जिद आप लोगों को शायद नहीं पता हो, मस्जिद नबवी में एक वो था कि छोटे बच्चे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो पाबंदी लगा दी वहाँ के मेयर ने. जो नाज़िम होता है ना, नसामत देता है, ठीक है ना, कि वो बच्चे आते हैं, वो मिसाल में बच्चों ने अगर कोई पेशाब वगैरह कर दिया तो जगह खराब हो गई, उन्होंने भाग दिया. तो उस मेयर के ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, कहते हैं तुम्हें अगर तुम्हारी तालीम इतनी अजीज है अपनी तालीम उठा के मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि जब आप कंपैरिजन करते हैं चीजों की, 76 बच्चों की लाश. सर देखा जाए तो बात वही आती है ना, जब कबल की आमद से पहले
1400 साल पहले क्या होता था? दौरे जहालत में तो अब आप बोलेंगे दौर जहालत नहीं, सर ये टेक्नोलॉजी उससे एक्सट्रीम पे है। टेक्नोलॉजिकल दौर है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, घर घर में कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप है, दुनिया आपके फिंगर टिप्स पे है, जो चाहते हैं गूगल पे लिखते हैं और निकाल लेते हैं, फिंगर टिप्स के ऊपर दुनिया है। आप कहें कि शौक है, इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैं तो हैरान हो गया सुन के। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए कि हम उस माशरे का हिस्सा हैं जिस माशरे में करप्शन का हाल हो जाए, उस बच्चे का क्या। सर ये जो इनके हवाले से ना डॉक्टर शाहिद मसूद की एक सीरीज दैन ऑफ द टाइम, इसमें मैंने देखा था तो उन्होंने कहा कि आज मालूमात का सैलाब है। मालूमात बाइबल के मुताबिक बताया गया है कि इनकी कसरत होगी और कुरान मजीद के मुताबिक बताया गया कि आखिर में इल्म उठा लिया जाएगा। अगर आप देखते हैं इनकी कसरत, दोनों में एक ही बात है। इनकी कसरत आज कितनी है आप देखें, हमको पता है कि क्या चलना आगे पीछे मिनट के अंदर हम लोग सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन इल्म जो उठा लिया गया वो हकीकी इल्म है। आज हमें अपने सहाबाए कराम, अंबियाए कराम, औलियाए कराम, इनके बारे में कुछ नहीं पता, ना सुन्नत के बारे में ना बिदअत के बारे में, कुछ भी नहीं पता। और बाकी उन चीज़ों पे हम लोग गौर फिक्र करते जा रहे हैं। ये मालूमात है जो हम हासिल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतनी, क्या वो खुदा के बारे में कुरान से ज़्यादा जान पाई? क्या वो इस्लामिक मैनेजमेंट पढ़ाया, इस्लामिक मैनेजमेंट पढ़ा, सिर्फ बता रहा हूँ, ये मालूमात इस्लामिक मैनेजमेंट पढ़ा। मैं सादी का नाम ले लूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है, नाम मेरी कुछ इल्म में नाम थोड़ा सा चूंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 64 लाख मुरब्बा मीटर हुकूमत की। उस वक्त जब हुकूमत की 64 लाख मुरब्बा मीटर, वो उस वक्त की आधे से ज़्यादा दुनिया होती है, उस वक्त की आधी दुनिया होती है। कैसे रूल किया हमसे तो इसके बाद तो मसले में लेकिन ये है कि बहरहाल मैं परेशान हो गया जब सुना ना मैंने को। इस्लाम में इल्म और इल्म को अलग डिस्क्राइब किया है अकॉर्डिंग टू बिल्कुल इल्म क्लास प्लीज। देखिए मैं आप लोगों को बोलने का मौका इसलिए देता हूँ कि सुन तो लें प्लीज। यासिर इस्लाम ने इल्म को अलग डिफरेंट डिस्क्राइब किया है इस्लाम ने, और अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस सुन्नत के मुताबिक जो इल्म जो है दानाई और हिकमत को जो डिस्क्राइब किया, नॉट के अदर्स जो आप एम्प्लॉयमेंट में लाइक जो ना हज़रत लुकमान तफक्कुर करना, जगह जगह तफक्कुर करें, गौर और फिक्र करें, गौर और फिक्र करें। और जो फिक्र नहीं करती हैं वो फिर फुल एम्प्लॉयमेंट के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट तफक्कुर नहीं करते हैं। मैं मतलब ये नहीं कि हम अच्छा एक चीज और दुनिया की कोई भी मजहब उठा है, लेकिन इस्लाम की बात नहीं करता, कोई भी मजहब उठा है तो कभी भी इनएफिशिएंसी की बात नहीं करेंगे, कभी भी बेवकूफी की बात नहीं। दुनिया के हर मजहब में सूद के सब खिलाफ है। बुद्धिज्म दे आर अगेंस्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्रिश्चियनिटी दे आर अगेंस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस्लाम अगेंस्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप पढ़े तो एंड हिंदुइज्म whatever religion, every religion they are totally against of because of interest economy. तो चीजें सब में यही है, हर मजहब इंसानियत का दर्ज देता है। कौन मजहब इंसानियत का दर्ज देता है बता दें, कौन सा? तो मैं इस्लाम तक अपने आप को लिमिट नहीं करें। आप दुनिया की कोई भी मजहब को पिक करें, आप बोलेंगे सर सब मुस्लिम सब मुसलमानों की बात करें, नहीं, कोई हर मजहब बुरी चीजों को डिस्करेज करता है, अच्छी चीजों को एनकरेज करता है। रिस्पेक्ट द ह्यूमन बीइंग, रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशन 27 दिसंबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ, उसके 1 एस्टैब्लिश हुआ।